Sir, I can tell you very clearly that every one chapter of 22, every single chapter, 22 chapters of the Constitution was misused in Andhra Pradesh during the last 5 years. No one is misleading. You should have spoken this 5 years back, Kindly, not now. kindly you address to chair. I think so nothing will go on Sir, record except Dr. about Sabri. 86,000 crores of rupees which belong to the welfare of SC/ST category under SC/ST sub-plan were misutilized and diverted for their personal use, which is violation of Article 14. And then about 1,600 crores were diverted, which was supposed to be used for the health, was diverted for their personal use or Navaratnalu, which even did not do well because of the corruption of the leaders there. And about 9 lakh acres of government land was transferred to the private properties or binamis of their government. Sir, our state, we were very proud of our state when the state got divided, that Amaravati was the capital. But after YSRCP has come, and this Amaravati the stone was laid by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And it was not just built with bricks and mortar, but hopes and aspirations of people of Andhra Pradesh. But 28,000 people have sacrificed their lands under Niti Aayog and in the hopes of having a new capital. But after YSRCP government has come, they have played a game of 3 capitals and built 3 palaces where thousands of rupees was spent. Example, Rishikonda. Example was the Rishikonda Palace. Sir, as I tell you, the volunteer system that has brought by the YSRCP government, they were just the pawns in their political game. And they were used for election campaigning. They were used for deleting the voters list, NDA, who belong to NDA party, deleting about 15.8 lakh false voters were identified. Long and thorough discussion on this very important aspect of airfares in the country. It all originated by the private members' business resolution, which has been put by Honorable Member Shafi Parambalji on the topic of appropriate measures to regulate airfare in the country. And from the number of speakers that have spoken, over 1.5 years, this is the first resolution that has come into this Lok Sabha. And since then, when 26th of July 2024, there were 9 speakers who have spoken that day. Again, on 28th of March 2025, there were 14 speakers. And today, on 12th of December, we have had another 8 speakers speak on this. One thing that is evident today from all the speakers that have spoken and the emotion that has come out, the government continuously speaks about how aviation today is a matter of fact. From हवाई चप्पल से हवाई जहाज का जो नारा था, वो सच है, ये साबित होता है जिस भावना से ये सभी लोगों ने यहाँ पे अपनी बात रखी. Unless it is connected to the masses of the country, you don't see that kind of emotion being spoken, both from the members this side and from the members that side. So that is an example that how deeply and inclusively, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, the civil aviation is interconnected in this country. And I'll try to stick to the points that have been mentioned in the resolution, which I feel is also very important to address today. The first point is to initiate appropriate measures to regulate the airfare in such a way that there is a reasonable upper limit to the maximum fare that an airline can fix in a route. Madam, taking up this point, let me start by looking into the aspect of deregulation in the country. Some speakers have already spoken about it. The deregulation starts with Air Corporations, the regulation starts with Air Corporations Act of 1953. That was the time when they decided that the airfares need to be regulated. There was a committee which was there and which was looking into all the regulations and the capping of fares and deciding what the tariff should be. But then in 1994, it was decided that the aviation sector should be deregulated. And it was deregulated, that idea that came up, and then the Air Corporations Act was repealed in 1994. And the idea behind the deregulation at that time was to allow the sector to grow. Open sky was mentioned because there was so much demand and potential in the country.
And considering the global way of how civil aviation was observed across the world, all the countries who have seen exceptional growth in their own country in civil aviation, they had deregulated markets. The deregulation of markets, one, lets the sector open up for many players to come in, and it also encourages competition at the same time. When you are saying deregulation, you are letting the market dynamics flow in, you are letting the market supply and demand play its own role so that the ultimate benefit is got by the passenger who is taking the ultimate benefit. So it is with that idea in 94 itself, the deregulation has happened, and from then we have seen that multiple airlines have come in and multiple challenges for airlines, some have gone out and new airlines have come in. But the idea still remains that if the civil aviation network, the aviation sector, if it needs to grow, the first and foremost thing is to keep it deregulated so that the competition survives, more players can come in. Madam, and coming back to the whole deregulation aspect, even though I'm saying that the market is deregulated, let me also come to the fact that according to the Aircraft Act that we have right now, there is power with the central government that in extraordinary circumstances, when there is a possibility that there is a misuse of the air tariff deregulation that we have set up, then there is the power with the central government to interfere and set things right, to cap the fares so that the passenger does. इनको कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम ये नेता लोग दिल्ली पैसेंजर करके पहुंच जाते हैं और हर के आ जाते हैं। इस बार भी वही होगा, देख लेना। ये सर SIR जो है, ये जो सर वर्ड है, ये रेस्पेक्टेड है, लेकिन ये इन लोगों ने SIR सर को डराने वाला गब्बर सिंह बना दिया। अब we all support clean electoral rolls, but SIR totally politically motivated. आप बताइए SIR का मोटिवेशन क्या है, इंटेंशन क्या है? 2004 तक 13 times electoral rolls चेंज हुआ, इंटेंसिव रिवीजन हुआ। 1993 में एपिक इंट्रोड्यूस हुआ, 2004 में फोटो इलेक्ट्रल इंट्रोड्यूस हुआ। 2006 से 2019 इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया एपिक कंपलसरी है। 3 डिकेड्स ये एपिक से इलेक्शन हुआ। फिर आप भी बोल रहे हैं एपिक का कोई वैल्यू है ही नहीं, उसका डॉक्यूमेंट्स में सर में उसका कोई वैल्यू है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे के आर्टिकल 326 में बोला SIR में अगर नाम नहीं भी होगा, वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसका सिटीजनशिप रहेगा। जो लोग वोट नहीं दे पाएंगे, सिटीजनशिप रहेगा, मतलब क्या? सेकेंड क्लास सिटीजनशिप देंगे क्या? आप 2020 में ये SIR होना था, क्यों नहीं किया? चलो कोविड के लिए 21, 22, 23 आप लोग को इलेक्शन लोकसभा से पहले SIR करना ही नहीं था। ये सब में अपना फायदा के लिए कर रहे हो। SIR में आप लोग बोल रहे हो डुप्लीकेट वोटर को निकालना है। हाँ, हम लोग भी बोल रहे हैं, यही तो अपोजिशन बार बार बोल रहे थे। स्टेट इलेक्शन अरविंद केजरीवाल भी प्रूफ दे रहे थे, एक घर में 100 वोटर का नाम। बिहार में भी सब बोल रहे हैं एक घर में ये इतना रशियन, सब अपोजिशन प्रूफ दे के बोल रहे। तब इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेट वोटर को क्या कर रहे थे? अभी उनका याद है डुप्लीकेट वोटर के बाद। अच्छा, 65 लाख वोटर डिलीटेड इन बिहार, सब घुसपैठिया थे। बिहार में आप लोग थप्पा रहे हो जीते हैं। एक्चुअली बिहार में ना कोई पार्टी हारे हैं ना कोई जीते तो इलेक्शन कमीशन जीते हैं। अभी आपका उसमें सबसे फेवरेट नारा क्या बिहार का पता है? इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन के बाद बुलडोजर, ये सबसे ज्यादा नारा है। आप नागरिक का बात करते हो, सिटीजनशिप, इलेक्शन कमीशन घुमा फिरा के आप सिटीजन हो कि नहीं ये बता रहे। आप कौन होते हो? संविधान में कौन सा धारा में आप बता रहे हो? आपका पावर क्या है सिटीजनशिप देना लेना नहीं हो ये बताने के लिए? इसके लिए दूसरा अथॉरिटी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होना चाहिए था, वो है ही नहीं। यहाँ पे इस देश में आइन है, डेमोक्रेसी है, संविधान है, बहुत सारे अथॉरिटीज है जो अलग अलग काम करना है, जिसको काम देना है, लेकिन नहीं, ये तो एक ही अथॉरिटी जो जुडिशियल से लेके सब कंट्रोल करेंगे। उसमें जितना
को करना है, करप्शन करना है, करेंगे। इसीलिए एक ही अथॉरिटी रहना है, सबको पावरलेस करना है। आप बोल रहे हो जो जनगणना 2011 में हुआ, 21 में, उस टाइम भी कोविड थे, लेकिन उसके बाद भी इतना साल निकाल गया, आपने तो किया नहीं। क्यों नहीं किया? उसका सर्वे जब स्टार्ट किया था, क्या रिपोर्ट आया जिसमें आपने बंद कर दिया? अगर बोले टाइम नहीं है, इलेक्शन आ गया, तो एसआईआर 3 महीने में आप कर रहे हो, प्रेशर दे के लोग को मार रहे हो। 50 आदमी वहां पे बीएलओ मर गए जो खुद बोल के सुसाइड नोट पे लिख कर गया इलेक्शन कमीशन के नाम पे, फिर भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, आप नहीं ले रहे हो। फिर 3 महीने में आपको करना है, लेकिन उस टाइम नहीं करना। आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र, वो तो एक ही होना चाहिए। आप इतना 11 ऑप्शन दे रहे हो, उसमें एक होने से क्या दिक्कत था? इतना दिन में क्यों नहीं किया आपने? रोहिंग्या बांग्लादेशी, आप क्या बोल रहे हो? पश्चिम बंगाल बॉर्डर एरिया है, उसमें घुस रहे, ठीक है। तो फिर ये लॉजिक में मिजोरम, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वो भी तो है, वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ बंगाल? क्योंकि 26 में इलेक्शन है। अच्छा, आप मान लो ये बॉर्डर है, इसलिए बांग्लादेशी घुस रहे। कहां से घुस रहे? बॉर्डर से। बॉर्डर किसका है? बीएसएफ के। बीएसएफ किसका है? सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे? वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे ना, वो इनविजिबल मैन है, वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना। तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है। और आप ये बताइए, आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या है? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आगे आगे आगे, कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? फिर क्या? चुप 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 चुप। कितना कितना आपके पास कोई सर्वे है ही नहीं। कितना आपके पास कोई सर्वे है ही नहीं। अभी मैं बता रही हूँ, बीएसएफ के लगा हुआ है। शताब्दी राय मैडम, प्लीज एड्रेस द चेयर ओनली। अभी ये सरकार का कुछ काम बताती हूँ जो सिर्फ पब्लिक को हैरस और टॉर्चर करने के लिए। इसीलिए थोड़ा अतीत में जाए, जैसे आधार कार्ड, तब क्या बोला? आधार कार्ड कंपलसरी करो करो करो, सब खाना वाना घर छोड़ के, काम छोड़ के जाके आधार कार्ड किया। उसके बाद अभी उसका कुछ वैलिड नहीं रहे। तो ये आधार कार्ड को अभी शरीर का अपेंडिसाइटिस बना दिया है, तो ठीक है, नहीं है तो फेंक को बाहर करके, ऐसा हो गया। ये टॉर्चर नहीं तो क्या है? सेकेंड, बैंक में खाता खोलो, इतना पैसा देंगे। बैंक में का स्टाफ कितना है? 10 है, 12 है, और 12,000 लोगों को भेज दिया खाता खोलने के लिए, पैसा आएगा, सब जाके खाता खोलने लगे। उसका रिजल्ट क्या है? 0 है। उसका काम कितना दिया है स्टाफ का? कोई भी पूछा कैसे हो रहे? नहीं। ये भी एक टॉर्चर ही है। आप बोले लिंक करो, जहां पे जाओ आधार कार्ड के बैंक के साथ, होटल के साथ, जमीन खरीदो, सबके साथ लिंक करो। लिंक में क्या हुआ? कुछ नहीं। उसका भी, ये भी एक टॉर्चर ही है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जैसा अचानक आ गया नोटबंदी, उसमें क्या हुआ? आपने क्या बोला? जे इसमें ब्लैक मनी खत्म होगा, टेररिस्ट खत्म होगा। क्या हुआ? हर दिन ब्लैक मनी मिल रहे। टेररिस्ट का बात तो मत ही करो। पहलगांव में क्या हुआ? अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में आपके नाक के ऊपर ब्लास्टिंग हुआ, मतलब टेररिस्ट खत्म कर नहीं पाए, ब्लैक मनी खत्म कर नहीं पाए। फिर भी ये नोटबंदी और एक टॉर्चर ही है। अभी इसका नया फॉर्मेट है एसआईआर। ये भी टॉर्चर करके लोगों को मार रहे हो, ये भी और एक फॉर्मेट से आप बता रहे हो। ये जो करते हो ना, बैंक लिंक, ये नोटबंदी, एसआईआर, इसमें मेरा एक स्टोरी याद है। मेरे फैमिली में एक का डेथ हो गया था, जिसके हस्बैंड को डेथ हो तो वो रो रही थी, सब आके उसको संभाल रहे थे, ये करो मत करो मत करो, दुखी हो, जैसे एडवाइस करते। उसमें एक आए थे, आके बोल रहे थे मत रो, ससुराल में इतना काम मिलेगा, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, तो रोने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मुझे लगता है यही पॉलिसी अपनाया सरकार ने, जो इतना बेकार काम देगा, लिंक करो, आधार करो, ये करो, जिसमें उसको पूछने का वक्त ही ना मिले काम क्यों है, नौकरी क्यों नहीं है। क्यों आप बोल रहे हो जो गरीब और भी गरीब हो रहे, 2-4 अमीर और भी अमीर हो रहे, क्यों टेररिस्ट रोक नहीं पा रहे हो, क्यों साइबर क्राइम रोक नहीं पा रहे हो, ये पूछने का वक्त ही नहीं मिल रहे। अब सर
ये SIR क्या करेगा पता नहीं, लेकिन एक चीज किया, Kindly conclude, देश के लोगों को बेइज्जत करके रखा। एक 80 साल के बुढ़े आके पूछे, बेटा देखो बेटा, मेरा नाम, मेरा बाप दादा यहाँ पे थे, मैं भी यहाँ पे जन्म लिया, मेरा 2 जनरेशन भी यहाँ पे है, फिर भी बेटा देखो तो मेरा नाम है कि नहीं, मैं नागरिक हूं कि नहीं, मेरा बाप दादा शहीद हुए थे इस देश के लिए, देखो ना बेटा उसका नाम कहीं पे है कि नहीं। ये जो शर्म की बात है, ये शर्म देश कभी पहले देखा नहीं Please था। conclude. आप बताएं, इलेक्शन कमीशन ने वो जो 3 बातें थी ना, गलत बात नहीं सुनेंगे, गलत बात नहीं देखेंगे, गलत बात नहीं करेंगे, इसका नया फॉर्मेट लिया। क्या अपोजिशन जो भी करे उसको नहीं सुनेंगे, अरे वोट चोरी हो रहे नहीं देखेंगे, आप कुछ बोलो क्यों न्यूट्रल नहीं हो वो नहीं सुनेंगे। एक्चुअली ये जो बोल रहे हैं न्यूट्रल, उनका इलेक्शन कमीशन का पावर है, मैडम, नहीं तो पूछ रही हूँ, वो तो कोई धन्यवाद। कोई पार्टी के लिए Please तो नहीं है ना conclude. इलेक्शन Please कमीशन, conclude in किसका 30 बॉन्ड, seconds. इलेक्शन conclude. कमीशन किसी का बॉन्ड लेबर तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी को जिताने के लिए, हराने के लिए शपथ तो नहीं लेते, ऑफिशियली अनऑफिशियली पता नहीं है। आप लोग बोल रहे हो जे, फिर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर दाग इतना क्यों लग रहे, क्यों क्वेश्चन मार्क आ रहे, ये तो आप बताओ। आप बिहार को बोल रहे हो जीते हैं, कोई बोल रहे जीते हैं, कोई बोल रहे लूटे हैं, पता नहीं लूट कर जीते हैं कि नहीं, लेकिन ये बता रही हूँ बंगाल में आप वो कर नहीं सकते। आप बोल रहे हो ना श्रीमती सर है, सर है, सर है, आप देख लेना। श्रीमती डिम्पल यादव मैडम, Shrimati Dimple Yadav madam. No, I have given you a lot of time, and before Shrimati Dimple Yadav madam starts speaking. Sir, she's concluding. No, madam, please. Sir. No, one second, please, no, please listen to me. Shrimati Shatabdi Rai madam, please listen to me. No, please listen to me first. No, I have given you enough of chance to conclude. Please listen to me. I will give you ample time to conclude, but listen to me first. Please listen to me. Please listen. No, it doesn't go that. It will not go that way. Please listen to me what I am saying. Please listen. While you are speaking into the mic during your speech, you said chup, chup, chup 3 times to Honorable MP Mr. Khan.